Hi everybody, I'm Dr. Shweta and I once again welcome you to Teaching Learning with Shweta. So I had discussed the behaviorist theories of motivation in my previous video. So I'll be continuing from there. In the previous video, we had discussed how the rewards, the reinforcements, and then connections, associations, and all these behavioral aspects they determine our levels of motivation and they prompt us to undertake certain actions. So we had discussed them in details. We had discussed the Thorndike's theory, the Skinner's theory, the Pavlov's theory. So that's what we discussed, and also the drive reduction theory we discussed in our previous video. So we'll be continuing from there. So I'm just playing the slides that we have covered. So we've covered all these concepts of need, drives, definitions of motivation, push and pull theories of motivation, intrinsic, extrinsic motivations. Then we've done in details discussion of need, drives, motives, types of these. Now this slide again I would like to show you. This is a very important slide because from this slide we can see that we have divided the motivational theories on the basis of these aspects. So this is my way of dividing motivational theories. There are several theories. There are many theories. So just to avoid confusion, I think this is a very good way of remembering the kinds and classifying and categorizing those motivational theories under categories. So evolution theories, instinct theories we've done. We've also discussed the psychoanalytic theory. Then this was what we were discussing in my previous video, Pavlov, Skinner's theory. The drive theories also we've done. So we had left here. We have just ended our presentation here. So today we'll be discussing the arousal theories. Now arousal, whenever we use the word arousal, we actually have something to say about both behavior and emotion. Arousal, जहाँ भी emotions भी हैं और behavior भी हैं, इनका combination है, वहाँ पे arouse. हम अपने behavior, अपना जो भी हमारा motivation होता है कुछ करने के लिए, whatever action or behavior we are motivated to do is often led by our emotions. अगर कोई खतरनाक चीज हमारे सामने आ जाएगी तो हम आउट ऑफ फियर वहां से भागेंगे, हम डर के मारे वहां से भागेंगे. तो भागने के लिए हम मोटिवेशन इसलिए हमें मिल रहा है बिकॉज देयर समथिंग स्कैरी. तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं, सो दिस फियर इज ऑल्सो एन इमोशन. So emotions are also playing a role in determining our behavior and our motivational level. अगर ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है तो शायद हम इतना ज़्यादा वहाँ से भागने के लिए motivated नहीं होंगे. तो कहीं ना कहीं emotions are also playing a role. So arousal is also playing a role. So we understand emotion as arousing us and compelling us to do something, to run away or to take an action. That is what is referred to as arousal in these theories. So there are three significant theories that can be put under arousal theories. और यहाँ पे भी motivation में behavior अभी भी behavioral aspect अभी भी आ रहा है. तो इसीलिए हम behavior को, अभी तो हमने जो theories पढ़ी थी थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव की, वो completely behavioral एस्पेक्ट्स की ही बात कर रही थी कि कोई रिवॉर्ड है इस वजह से कोई रिस्पॉन्स है, कोई स्टिमुलस है उसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स है. यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई है कि कोई स्टिमुलस आ रहा है जिसकी वजह से बिहेवियर तो हम कर ही रहे हैं, बट एक इमोशन भी बीच में रोल प्ले कर रहा है. So that is why these theories are also known as arousal theories, because they not only talk about behavior, they also talk about arousal. लेकिन अभी भी cognition की बात नहीं की है बहुत डिटेल्स में यहाँ तक, इसीलिए ये अभी भी cognitive theories of motivation नहीं है. तो हम इंस्टिंक्ट्स की बात कर चुके हैं, हम ड्राइव्स रिडक्शन की बात कर चुके हैं, हम बिहेवियर की बात कर चुके हैं, रिवॉर्ड्स की बात कर चुके हैं, और अब हम बात कर रहे हैं इमोशन की. तो ये इमोशनल एस्पेक्ट्स इसमें आ गए हैं. तो सबसे पहले लेट अस जस्ट लुक एट दिस पिक्चर फर्स्ट. In this picture you can see that there's something frightening. In the first picture, the James Lange theory that under which I have put this, the first picture,
there's something scary, a bear comes into the scene. जैसे ही bear आता है, then we start observing some behavioral changes. मैंने पहले कहा था behavior वो है जो observe हो सकता है, जो दिखता है. So the heart starts pounding and starts trembling and we start sweating and all those behavioral changes start appearing in our body. And then the person starts to run because the person realizes that he or she is scared because of this bear. So what James Land is trying to tell us here is that first the dangerous stimuli, after the dangerous stimulus appears, first behavioral changes appear and then recognition of fear starts. तो पहले बिहेवियरल चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से इमोशन आते हैं, बट इमोशन आते ज़रूर हैं और यही रीज़न है कि हम भागने के लिए मोटिवेटेड होते हैं. तो ये जेम्स लैंच कह रहे हैं. सेकेंड पिक्चर में आप देखो, कैनन बार्ड कहते हैं कि नहीं, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं. जैसे ही कोई खतरनाक चीज़ आती है, द मोमेंट देयर इज सम डेंजरस स्टिमुलस दैट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस, देन बिहेवियरल चेंजेस भी हो रहे हैं बॉडी में और साथ के साथ इमोशनल चेंजेस भी हो रहे हैं जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं. सो द मोटिवेशन टू रन अवे, द मोटिवेशन टू टेक एन एक्शन इन डिफेंस is compelled or regulated by both behavioral changes taking place in our body and also because of our emotions. तो ये fear की feeling बाद में नहीं आ रही है, जैसे जेम्स लैंच ने पहले कहा था. डर भी हम रहे हैं और हमारी बॉडी में चेंजेस भी आ रही हैं, बिहेवियरल ऑब्जर्वेबल चेंजेस. अब हार्ट रेट अगर हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं. इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कहा है. अब माइंड में जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, बट हार्ट रेट को तो हम डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं. इसीलिए दैट इज़ व्हाट आई रेफर टू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हियर. सो जेम्स लैंच कहते हैं कि जब कोई खतरनाक चीज़ आती है तो सबसे पहले बिहेवियरल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से इमोशनल चीज़ें शुरू होती हैं और हम मोटिवेटेड होते हैं या तो भागने को या किसी काम को करने में. बट कैनन बार्ड कहते हैं कि नहीं, ये दोनों चीज़ें एक साथ होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस भी हो रहे हैं और इमोशनल चेंजेस भी हो रहे हैं. अब स्कैचर सिंगर ने इन दोनों थ्योरी से डिसएग्री नहीं किया. जो तीसरी पिक्चर आप देखेंगे, द थर्ड पिक्चर यू can see that both the things are there, but one element of perception has been added. तो स्कैचर सिंगर ने ये जो हमारी अराउजल थ्योरी थी जिसमें इमोशन और बिहेवियर की बात की थी, उसमें एक कॉग्निशन का एलिमेंट ऐड कर दिया कि जैसे ही कोई खतरनाक चीज़ आती है तो हमारी बॉडी में बिहेवियरल चेंजेस तो होते हैं और वो बॉडी के जो बिहेवियरल चेंजेस हैं उनका इंटरप्रिटेशन हमारा माइंड करता है और फिर उस इंटरप्रिटेशन से इमोशन निकलता है. So basically he is agreeing with James Lange's theory as well as Cannon Bard theory, but he is only introducing an element of cognition, that is interpretation. So James Lange कहते हैं कि जैसे कोई खतरा आता है हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को देख के हमें डर लगने लगता है, हमारे अंदर इमोशंस आते हैं. कैनन बार्ड कह रहे हैं कि जैसी कोई खतरनाक चीज़ आती है हमारी बॉडी में भी चेंजेस आने लगते हैं और हमारे अंदर इमोशंस भी आने लगते हैं. स्कैचर सिंगर ने इसमें बस एक चीज़ ऐड की है कि जैसे ही कोई खतरनाक चीज़ आती है तो बिहेवियरल चेंजेस जो ऑब्जर्वेबल हैं वो तो आते ही हैं, बट उन चेंजेस को हमारा माइंड कॉम्प्रीहेंड करता है, अंडरस्टैंड करता है, परसीव करता है और इंटरप्रेट करके उस खतरे को इमोशन से जोड़ता है और तब हम भागना शुरू करते हैं या हम मोटिवेटेड होते हैं किसी एक्शन के लिए. सो स्कैचर सिंगर इज जस्ट एडिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉग्निशन इनटू इट, दैट व्हेनेवर देयर इज अ स्टिमुलाई व्हिच इज डिस्टर्बिंग. In this example, it is a disturbing or a scary stimulus. It may not always be a scary stimulus. It may be a positive stimulus and a positive behavioral change and a positive emotion also. But here the example that he had given was that if there is a scary stimulus coming in front of us, that leads to behavioral changes, but the behavioral changes in the body such as breathing rate, increase in the breathing rate or heart rate, that is comprehended by the brain and a label of emotion is given to that behavioral change, and that is what motivates us to behave in a certain manner, running away in this example. So James Lange's theory states that stimuli lead to arousal, that is behavioral change, leading to emotional change. Cannon Bard says that stimulus leads to both behavioral changes and emotions, and that is what motivates our behavior. Scatcher's
Two-factor theory states the stimulus leads to behavioral changes, and then our mind interprets these behavioral changes and leads to recognition or labeling of emotion, and that is what motivates us to behave in a certain manner. And there is another theory called Hebb's arousal theory. Now Hebb's states that जो भी हो रहा है हमारी environment में, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब जो knowledge है, वो सारी knowledge जब हमें मिलती है stimulus के form में, तो वो हमारी body में जो cells हैं उनमें वो store हो रही है. Basically he was referring to nerves. So ये सारी जो information आ रही है, ये हमारी cell assemblies, group of cells जो हैं वो cell assemblies कहलाते हैं, और वो सेल असेंबलीज एक सीक्वेंस की तरफ एक इकट्ठे होकर एक फेज सीक्वेंस शेप करते हैं. तो अगर आप इस स्लाइड को देखें तो ये जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं या नर्व्स हैं, जो भी बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑल दैट नॉलेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन दी सेल असेंबलीज, एंड समटाइम्स दी सेल असेंबलीज दे जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ फेज. And whenever there is a stimuli, this kind of a thing happens, that all these cell assemblies, they join together and form a phase sequence. So more is the arousal, more is the intensity of the stimuli, more is the activation of this phase sequence, and we are motivated to act in a certain way. तो कोई भी स्टिमुलस आता है तो वो हमारे लिए है एक्सटर्नल, बाहर से आने वाली चीज और बाहर से आने वाली नॉलेज. सो दैट नॉलेज गेट्स स्टोर्ड इन द नर्व्स, एंड दीज नर्व्स दे फॉर्म अ फेज सीक्वेंस, दे फॉर्म अ सीक्वेंस, एंड मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, ज्यादा खतरनाक है या बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग है, सो दैट determines how this phase sequence will be, how much this phase sequence will be activated and how much we will be motivated to act. तो आप देखोगे कि ये जो ग्राफ है, ये जो डायग्राम है, इसमें एक्स एक्सिस पर अराउजल है और वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस है. तो अराउजल किस चीज का हो रहा है? फेज सीक्वेंस का. जितना ज्यादा स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन होगा टू एक्ट या परफॉर्म करने का. तो जितना ज्यादा आप अराउजल कैसे ज्यादा होगा? अगर कुछ रिवॉर्ड्स हैं या कुछ टेंशन उसका ज़्यादा है, इंटरेस्ट है उसको, या उसकी काम की चीज़ है या अट्रैक्टिव है, तो ऑब्वियसली जो सेल असेंबलीज फेज सीक्वेंस बना रही हैं वो फेज सीक्वेंस ज़्यादा एक्टिवेट होगा. ये फेज सीक्वेंस किसी भी चीज़ से ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है. तो जितना ज़्यादा ये एक्टिवेट होगा उतना ज़्यादा अराउजल होगा, और इमोशंस तो कहीं ना कहीं अराउजल में कनेक्टेड है ही, और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगी. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये बोलें तो हेब्स इज जस्ट ट्राइंग टू से दैट he has just given it a more scientific outlook to this theory, that there's nervous system involvement in motivation, and all that is coming from outside, which is encouraging us to give a response. जो भी stimulus बाहर से आ रहा है उसके लिए जो हम response देने के लिए हम motivated हैं, ज़्यादा motivated हैं, कम motivated हैं, that depends on how much have these phase sequences been activated. तो हमारी बॉडी में जो फेज सीक्वेंसेस बन रहे हैं, जब भी कोई बाहर से कोई चीज़ आ रही है, वो कितने ज़्यादा अराउज्ड होंगे और कितना ज़्यादा हमें मोटिवेट करेंगे टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, दैट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट, द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द स्टिमुलस, एंड दैट लीड्स टू मोर अराउजल, एंड द फेज सीक्वेंस इज मोर अराउज्ड एंड वी आर मोर अराउज्ड टू मोटिवेट इन अ सर्टेन मैनर. So this theory was the first to give a neurological basis for explanation of behavior. कि behavior stimulus response की वजह से तो हो ही रहा है, but there is something happening inside our body in the nerves also. These nerves are forming a group and a phase sequence. Now how much these phase sequence or the group of nerves will be activated, that depends on several factors. And if these factors are there, we will be motivated more to behave in a certain way. So these theories, the arousal theories, they actually have a lot of educational implications, because we can always use a lot of cues, a lot of teaching aids to arouse the interest and the emotions of these students and motivate them to act in the desirable ways. तो क्यूरियोसिटी को बढ़ाना और ऐसे अराउजिंग एक्टिविटीज़ देना, इमोशंस को कनेक्ट करना, all that can be used by teachers and can be made use of to
encourage activation of face sequences and motivate them for behavior. अगर आप ऐसा डल सा क्लासरूम बना के बैठेंगे जहाँ पे कोई अराउजल की चांस ही नहीं है, ना तो इमोशंस अराउज हो रहे हैं, ना कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली मोटिवेशन कम रहेगा. So it's very important that you keep on evolving methods to arouse the interests of students, to keep boredom away, and उनके arousal levels आप हमेशा ज़्यादा रहें, लेकिन anxiety और fear को ना encourage करें. वो इतना भी आपको positive emotions encourage करने हैं, positive arousal करना है, ना कि anxiety या fear. अब हम अभी तक जो theories पढ़ रहे थे उसमें हमने instincts की बात कर ली, बिहेवियर की बात कर ली. बिहेवियर में हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे कि बाहर से कोई स्टिमुलस आता है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं. वो रिस्पॉन्स हम जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे इसका मतलब है हम ज़्यादा मोटिवेटेड है. नाउ दैट डिपेंड्स ऑन वेदर वी आर गेटिंग अ रिवॉर्ड और वी आर फॉर्मिंग अ कनेक्शन. अगर हम कनेक्शन की बात करें जो पावलोव की थ्योरी में बताया गया है, सो अ चाइल्ड विल बी मोटिवेटेड टू गो इन अ क्लासरूम विद द बिहेवियर ऑफ द टीचर इज वेरी स्वीट, क्योंकि उसने स्वीट बिहेवियर को क्लासरूम से एसोसिएट कर. A child will be more motivated to go to a classroom where the child gets a toffee. तो उसने रिवॉर्ड को एसोसिएट कर दिया. तो इस तरह की जो हमने थ्योरीज, और कई बार बच्चा गलती से भी किसी एक क्लास में आ गया और वहाँ पे उसको मजा आने लगा पढ़ने. सो ट्रॉन्डाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज ऑल्सो एप्लीकेबल. तो यहाँ पे ये जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, यहाँ पे बिहेवियर को स्टिमुलस रिस्पॉन्स इस तरह से ही बताया जा रहा है. यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इंसान जो भी सीख रहा है और जो भी सीखने के लिए मोटिवेटेड है, वो सब या तो उसकी हैबिट है, या फिर उसको हमने सिखा दिया है, या फिर कंडीशन कर दिया है, या अवार्ड्स या रीइंफोर्स कर करके हमने उसको बता दिया है. बट धीरे धीरे इन थ्योरीज का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होने लगा कि इंसान जो अपना बिहेवियर कर रहा है, the motivation behind any act is not only led by rewards or associations or stimulus response bond. दुनिया में हर चीज़ मशीन की तरह नहीं हो रही है कि हम कोई स्टिमुलस दे रहे हैं, बाहर से आने वाली चीज़ कोई आ रही है और उसको देखकर आउट ऑफ हैबिट, आउट ऑफ कंडीशनिंग, आउट ऑफ बिकॉज वो रिवॉर्ड से एसोसिएटेड है, हम फिक्स्ड रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. इंसान के पास दिमाग भी होता है, और दिमाग भी इंटेलिजेंस भी होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, रीजनिंग भी होती है. ये कॉग्निटिव एबिलिटीज इंसान के पास हैं, जिसकी वजह से वो सोचता भी है, वो समझता भी है, उसके इमोशंस भी हैं, उसका परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग भी है. तो दिमाग की बातें तो लोग बिहेवियरिस्ट थ्योरी में कर ही नहीं रहे. वो कह रहे हैं सारे बच्चे एक जैसे हैं, सब रिवॉर्ड्स से मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर वो काम करेंगे. जितने छोटे बच्चे हैं सारे क्लास में जाएंगे, उसी क्लास में जाएंगे जिस क्लास में उनको रिवॉर्ड मिलेगा. बट ऐसा भी तो कोई बच्चा हो सकता है जिसको रिवॉर्ड मिलने के बाद भी मजा ना आ रहा हो. तो इसका मतलब कुछ तो अलग है उस बच्चे में. तो वो वाली बातें ये बिहेवियरिस्ट थ्योरीज कर ही नहीं रही हैं. हो सकता है किसी एक बच्चे को क्लास में कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, फिर भी वो काम अच्छे से कर रहा है, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस हाई है, वो मोटिवेटेड है, उसकी क्रिएटिविटी हाई है. तो इसका मतलब दिमाग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में तो ये थ्योरीज बात कर ही नहीं रही है. So these theories were subject to a lot of criticism, these behaviorist theories that only were discussing about stimulus response bonds and things like rewards, associations, trial and errors. To understand motivation behind the behavior, they were subject to criticisms because they were ignoring a very important aspect of human beings, and that was the mind of the human beings. What was going inside the mind? Was that not playing any role in shaping the behavior? That was what was criticized by a lot of psychologists, and they started questioning these behaviorist psychologists कि ऐसा नहीं होता कि हम कई बार रिवॉर्ड्स को भी समझने लग जाते हैं, दिमाग लगाने लग जाते हैं कि कुछ हमारा दिमाग भी क्या रोल प्ले नहीं कर रहा है. तो टोलमैन was one psychologist, so he is given this theory जिसमें उन्होंने behaviorist approach को तो यूज किया ही है कि there is some reward जिसकी वजह से कोई काम कर रहा है, लेकिन उस रिवॉर्ड को पहुंचने में भी वो दिमाग लगा रहा है, और उस दिमाग लगने वाली बात को अभी तक किसी ने नहीं कहा था. टोलमैन ने इसको एक एक्सपेरिमेंट से बताया. उन्होंने कहा कि ठीक है, हमेशा जो रिवॉर्ड्स हैं, अगर किसी काम को करने से हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, इफ वी आर गेटिंग अ रिवॉर्ड बाय डूइंग समथिंग, दैट वी विल बी मोटिवेटेड टू डू दैट. बट इन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दैट goal, we are also applying our cognition.
We are also expecting the reward, and hence we will start start using our mind to reach to that goal to get that reward. So there is some kind of activity which is taking place in our mind to reach that goal because there is a reward associated. So in the process, it's just not simple stimulus response because of reward, but it is also something in between, and that is what is happening in our mind. And the mind starts mapping and pattern formation. So what experiment he did was, he took a maze. उन्होंने ये maze लिया और रैट को इस मेज में रख दिया एक एंड पर, और एक दूसरे एंड पर फूड रख दिया, और फूड की स्मेल, अब ये तो बिल्कुल बिहेवियरिस्ट रिवॉर्ड स्किनर्स थ्योरी से ही मैच कर रहा है. बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ द फूड, द रैट फाउंड द वे थ्रू द मेज एंड रीच्ड टू द फूड. अगर फूड की स्मेल नहीं होती तो वो शायद लास्ट तक नहीं पहुंच पाती जल्दी. तो ये स्किनर्स थ्योरी तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो ही रही है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि बार बार जब हमने ये कराया रैट से, तो रैट रास्ता पहचानने लगी एंड उसने मैपिंग कर ली. उसके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि यहाँ से रास्ता छोटा है, यहाँ से मैं जाऊंगी तो आराम से मुझे खाना मिल जाएगा. तो ये वाली बात स्किनर ने क्यों नहीं कही? स्किनर सिर्फ यहीं पे रुक गए कि कोई खाना है तो उसकी वजह से रैट विल क्रॉस द मेज. कोई खाने की वजह से रैट मेज को क्रॉस करके खाने की उस पजल में से निकल के बाहर आ जाएगी. बट स्किनर ने इस बात को इग्नोर किया कि बार बार ये चीज अगर कर रहे हैं तो रैट रास्ता पहचान जाती है, तो उसका मतलब उसके दिमाग में भी कुछ हो रहा है, कुछ कॉग्निशन भी इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल. सो Tollman concluded from his experiment that again and again when the food was being put at the end of the maze, the rat, because of what Skinner had said, because of this reward, the cat was motivated to cross the maze. But it was seen that after a few trials, the cat recognized the path. There was some mapping that the rat did on his or her mind and could easily cross the maze and get the food. So this cognition was ignored by Skinner and it was brought into light by Tollman. So he was the one who said that learning हमेशा किसी रिवॉर्ड की वजह से ही नहीं हो रही है. मोटिवेशन हमेशा रिवॉर्ड की वजह से नहीं होता है. कई बार एक पर्पस होता है, कई बार हमारे दिमाग में भी कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से हम कामों को करना सीखते हैं. सो लर्निंग इज पर्पसफुल एंड ऑलवेज इट इज नॉट रीइंफोर्समेंट दैट इज एनकरेजिंग अस टू स्टे मोटिवेटेड और लर्न समथिंग. सो आज मैंने यहीं तक करा है और इसके आगे आई विल नॉट मूव बिकॉज एज आई हैड ऑलरेडी सेड दैट टू मच नॉलेज इन वन गो इज नॉट वेरी यूजफुल. सो आई जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट आई हैव डन टुडे. हमने आज बिहेवियरिस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन की आगे का पार्ट किया है. हमने यहाँ पर पहले तो ये डिस्कस करा है कि अराउजल क्या होता है. अभी तक हम बिहेवियर की ही बात कर रहे थे, हम इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहे थे, हम ड्राइव्स की बात कर रहे थे, हमने साइकोएनालिटिक थ्योरी भी पढ़ ली थी, हमने वॉल्यूशन थ्योरी भी पढ़ी थी. बट आज हमने डिस्कस किया कि बिहेवियर ही सब कुछ नहीं है. बाहर से कोई स्टिमुलस आ रहा है और उसके रिस्पॉन्स में, उसके वजह से हम कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं और मोटिवेटेड रहते हैं उस रिस्पॉन्स के लिए. फिर उस रिस्पॉन्स को हम सीखने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि या तो उस रिस्पॉन्स को करने के लिए हमें कोई रिवॉर्ड मिला होगा और बार बार मिलने की वजह से फिर वो चीज़ हम करने लगे. या फिर हमने पावलोव की थ्योरी में ये सीखा कि कोई अगर अच्छी मेमोरी एसोसिएटेड है तो हम उस चीज़ को बार बार करेंगे. या फिर हमने ये भी सीखा कि अगर हम गलती से कोई अच्छा काम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस मिल रहा है तो भी हम मोटिवेटेड हो जाते हैं उसको करने के लिए. सो टिल नाउ वी हैड ओनली स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बॉन्ड दैट was strengthened by a reward or a connection or an association or by trial and error. So in today's video we moved slightly ahead of it. Just not the behavior or just not stimulus response, there's something known as emotion also involved. This is what we studied today. तो जेम्स लैंज और कैनन बार्ड और स्कैचर टू फैक्टर थ्योरी हमने आज इसलिए पढ़ी बिकॉज वो ये कहते हैं कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो उसके लिए हम जो रिस्पॉन्स करते हैं उसमें इमोशन भी आ रहा है, उस इमोशन की वजह से भी बिहेवियर हो रहा है. तो या तो वो पहले स्टिमुलस को देख के इंसान कुछ
बिहेवियरल चेंजेस आते हैं उसके बॉडी में। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो एड्रेनलिन गश हो सकता है या एंडोमॉर्फिन्स हमारे सीक्रेट हो सकते हैं, ये बिहेवियरल चेंजेस हैं। द पर्सन स्टार्ट्स स्माइलिंग, द पर्सनस हार्ट बीट समटाइम्स इंक्रीजेस आउट ऑफ एक्साइटमेंट, तो ये सारा बिहेवियरल चेंजेस हैं। और फिर हमारे इमोशंस भी आते हैं। एंड देन द पर्सन मे जस्ट स्टैंड अप एंड ग्रीट एवरीवन और मे स्टार्ट क्लैपिंग हैंड्स। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने अभी पॉजिटिव इमोशन का देने की कोशिश की। हमने जो जेम्स लैंच की थ्योरी में जो एग्जाम्पल दिया था कि एक बेयर आ गया था, डेंजरस बेयर, जिसको देख के बिहेवियरल चेंजेस पहले आते हैं बॉडी में, फिर इमोशन की पहचान होती है और फिर हम मोटिवेटेड होते हैं कुछ भी करने के लिए, भाग जाने के लिए, खड़े होने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ऐसे ही हमने फिर बात की थी कैनन टू बार्ड की, कैनन बार्ड की, जो ये कह रहे हैं कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है तो तो बिहेवियरल चेंजेस के साथ साथ इमोशंस भी हमारे साथ में एग्जिबिट होते हैं, तो हम इस तरह से मोटिवेटेड होते हैं कुछ भी करने की। स्केचर ने बीच में थोड़ी सी कॉग्निशन की भी बात इंट्रोड्यूस करी, तो धीरे धीरे हम कॉग्निशन की तरफ जा ही रहे हैं। शुरू में तो हम कहते थे कि सिर्फ इंस्टिंक्ट्स की वजह से चीज़ें करते हैं, फिर हम धीरे धीरे अनकॉन्शियस बिहेवियर की वजह से हम करते हैं, ये फ्रॉइड ने बोला। फिर हम धीरे धीरे इस पर आ गए कि किसी रिवॉर्ड की वजह से हम चीज़ें करते हैं, जो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज थी। अब जब हम बिहेवियरिस्ट थ्योरी से बाहर निकल रहे हैं तो धीरे धीरे हम उन साइकोलॉजिस्ट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, उनकी थ्योरीज को डिस्कस कर रहे हैं जो बिहेवियर्स और इंस्टिंक्ट और ड्राइव से भी आगे निकल के दिमाग की बातें कर रहे हैं, इमोशंस की बातें कर रहे हैं। तो इमोशंस की बात फिर स्केचर ने की। उन्होंने कहा कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है, बाहर से कोई डेंजर आता है या कोई अच्छी चीज़ आती है, तो हमारी जो बॉडी है उसमें बिहेवियरल चेंजेस आते हैं और उन बिहेवियरल चेंजेस को हम परसीव करते हैं, हमारा दिमाग काम करता है और उसको इमोशंस को पहचानता है। So that is how we are motivated to either run away or stay there or do any action. तो कोई अगर अच्छा इंसिडेंट हुआ है तो सबसे पहले हमारे बॉडी में चेंजेस आएंगे और वो बॉडी के चेंजेस जो होंगे, सपोज कुछ अच्छा है तो एंडोमॉर्फिन सीक्रेट हुए हैं या एक अच्छी फीलिंग आई है, देन द ब्रेन अंडरस्टैंड्स दिस कि ये एक पॉजिटिव इमोशन है और उस पॉजिटिव इमोशन की वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं टू स्टैंड अप, क्लैप आवर हैंड्स और शेयर दिस न्यूज़ विद एवरीबडी और जस्ट सेलिब्रेट। तो दिस इज हाउ इमोशंस आर ऑल्सो प्लेइंग रोल इन मोटिवेशन। फिर हमने डिस्कस किया पर्पसिव बिहेवियर। तो अभी तक हम बिहेवियरिज्म को डिस्कस कर रहे थे, बट आज हमने जो डिस्कस की टोलमैन की थ्योरी, वो पर्पसिव बिहेवियरिज्म थी। मतलब एक रैट सिर्फ एक मेज क्रॉस करके खाने के पास सिर्फ इसीलिए नहीं जा रही है कि वो खाना उसका रिवॉर्ड है। स्टिमुलस फूड है, रिस्पॉन्स क्रॉसिंग द मेज है। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है ये स्ट्रांग होगा अगर हम बार बार खाना देते जाएंगे, ये स्किनर ने कहा था। लेकिन टोलमैन ये कह रहा है कि ग्रेजुअली रैट जो है वो रास्ते को ही समझ जाती है, फूड हटा भी दो तो भी वो रास्ता पहचान जाती है। इसका मतलब कुछ तो उसके दिमाग में भी हो रहा है जो स्किनर जिसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो there is some kind of mapping, some kind of cognition, some kind of understanding taking place in the mind of the rat. So human beings are not simply motivated to act in a certain way because of the greed of a reward. It is not a reward which only teaches us something or motivates us to do something. It is also because we are intelligent human beings, we can understand the purpose behind a certain response, and cognition also plays a very important role, and that is how we start understanding and mapping the response. So दिमाग वाली जो बात है वो टोलमैन ने इंट्रोड्यूस कर दी अपनी थ्योरी में। अब आगे की वीडियोस में जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें पूरी कॉग्निशन की बात की है कि इट इज ओनली आवर माइंड दैट इज प्लेइंग अ रोल इन मोटिवेटिंग अस टू डू समथिंग. So those theories we'll be taking up in the next videos. So stay tuned, subscribe my channel, keep liking my videos, and please post in your questions, your comments in the comment section. Bye bye.